ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ یہ دھرتی ایشیا کی آبادی چائنیز لیکن چرچ عمارتیں اسٹریٹ کے سائن بورڈ پرتگالی میں ہیں۔ یہ چین کا ہی حصہ ہے لیکن اس کا اپنا صدر، اپنی کرنسی اور فلیگ ہے۔ اس کی کرنسی کا نام مکینزی پتاکا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کاروبار کا لین دین ہانگ کانگ ڈالر میں ہوتا ہے۔ یہاں لوئی وٹان سے لے کر ایپل سٹور تک ہر لگژری ایٹم کی چین ملے گی کیونکہ یہاں فی کس آمدنی $1,20,000 ہے جو قطر کے بعد دنیا کا دوسرا امیر ترین خطہ ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے سستا گولڈ ملتا ہے۔ یہاں ایسا ہوٹل بھی ہے جس کی لابی میں گولڈ کی برکس لگی ہیں۔ جب بھی کسینو یا گیمبلنگ کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلا خیال لاس ویگس کا آتا ہے، مگر اس کی کسینو انڈسٹری لاس ویگس سے بھی 6 گنا بڑی ہے، اسی لیے اسے گیمبلنگ کیپٹل آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہاں کے کلچر سے لے کر ویزا تک اور کتے اور سور کے بنے کھانوں سے لے کر رات کی سیاحیوں تک بتائیں گے کس وجہ سے آج کل انڈین دھڑا دھڑ یہاں آ رہے ہیں۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو فنجنگ وشعت کے شوخص جو بھلی کریا پخیر راغلے مرحبا جی آئے نو خوش آمدید اور ویلکم۔ مکاؤ اس کا مطلب ہے مچھواروں کی زمین۔ مکاؤ چین کے جنوبی ساحل اور ہانگ کانگ کے قریب پرل ریور ڈیلٹا کے پار صرف 28 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ایک خود مختار علاقہ ہے جس کا 5.2 مربع کلومیٹر کا ایریا سمندر میں مٹی بھر کر حاصل کیا گیا ہے۔ مکاؤ کو ہانگ کانگ اور چائنا سے ملانے والا دنیا کا سب سے بڑا سی برج یہیں پر $20 ارب کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں کوئی جگہ ایگریکلچر کے لیے دستیاب نہیں ہے کیونکہ یہاں ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں جس سے درخت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ درختوں کو مصنوعی ٹانگیں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ گریں، اس لیے تمام پھل سبزیاں چائنا یا ہانگ کانگ سے منگوائی جاتی ہیں۔ مکاؤ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے قدیم ٹیمپل اور بازار، پرتگالی طرز کے چرچز اور عمارتیں، یہاں تک کہ سائن بورڈ بھی پرتگالی زبان میں ملیں گے، حالانکہ اس کی آفیشیل زبان چائنیز، کونٹونیز اور پرتگیزی ہے۔ مکاؤ کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی تاریخ میں تھوڑا سا جانا پڑے گا۔ 1557 میں پرتگیزی نئی زمینوں کی تلاش میں یہاں پہنچے تو یہاں مچھیروں کی بستیاں تھیں، تو پرتگیزیوں نے کچھ کو پھڑکا دیا اور باقیوں کو غلام بنا لیا اور اسے اپنی کالونی ڈکلیئر کر دیا۔ پرتگالی یہاں اپنا کلچر، مذہب اور عیسائی مشنری لے آئے۔ پادریوں کے آنے سے چرچز بننے لگے اور مسیحیت پھیلنے لگی۔ تجارتی جہاز یہاں آتے قیام کرتے جس سے شراب و کباب کی مارکیٹیں بھی بنتی گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ پرتگیزیوں کا ٹریڈ سینٹر بنتا گیا۔ ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی جاری رہیں۔ پھر 1887 میں چین نے ان کے ساتھ لیز ایگریمنٹ کر لیا۔ ورلڈ وار کی وجہ سے جاپنیز نے اس پر مختصر عرصے کے لیے قبضہ کر لیا لیکن اوور آل یہ علاقہ نیوٹرل اور سیف رہا۔ ورلڈ وار کی وجہ سے دنیا بھر کے مہاجرین اپنا مال و متاع لے کر یہاں پہنچنے لگے جس سے اس کی اکانومی بوسٹ کرنے لگی۔ 1930 میں پرتگیزیوں نے یہاں گیمبلنگ کو لیگل قرار دے دیا اور ہانگ تائی کمپنی کو گیمبلنگ کے قانونی رائٹس دے دیے گئے۔ کیونکہ مین لینڈ چائنا میں گیمبلنگ ان لیگل تھی تو یہاں آ کر ہارس ریسنگ، بیٹنگ اور لاٹریوں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے جس سے مکاؤ کی اکانومی کو تقویت ملتی۔ پرتگال نے 1961 میں گیمبلنگ میں مزید آزادیاں دے دیں اور رائٹس STDM کمپنی کو مل جاتے ہیں۔ وہ ویسٹرن گیم لے آتے ہیں جس سے یورپین اور ہانگ کانگ کے لوگ بھی یہاں آ کر گیمبلنگ کھیلنے لگتے ہیں۔ مکاؤ اور ہانگ کانگ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ 1997 میں برطانیہ نے ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کو دوبارہ چین کے کنٹرول میں دے دیا اور 2 سال بعد ایشیا کی پہلی اور یورپ کی آخری کالونی مکاؤ کو پرتگال نے 442 سال بعد 1999 میں چین کے حوالے کر دیا۔ مکاؤ میں بھی ہانگ کانگ کی طرح 1 نیشن 2 سسٹم رائٹ کر دیا گیا۔ چین صرف فارن افیئر اور ڈیفنس اپنے پاس رکھتا ہے۔ مکاؤ کے باقی تمام معاملات 2049 تک مقامی حکومت پر چھوڑ دیتا ہے۔ مکاؤ سرکار گیمبلنگ کو جاری رکھتی ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے 2002 میں یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے گروپ یہاں انٹر ہو جاتے ہیں۔ کسینو انڈسٹری مزید پھیل جاتی ہے اور آج یہاں 30 ملین سیاح صرف گیمبلنگ کے لیے آتے ہیں جن میں سے 90% لوگ مین لینڈ چائنا سے ویکینڈ پر آتے ہیں۔ دنیا کے 10 بڑے کسینو میں سے 8 مکاؤ میں آج موجود ہیں۔ مکاؤ
मकाओ की सबसे ऊंची कैसीनो दी ग्रैंड लेस्बोआ है। ये इमारत 261 मीटर बुलंद है और इसमें 47 मंजिलें हैं। यहाँ हर कैसीनो के बाहर दूसरे कैसीनो की बसें खड़ी होती हैं, वो फ्री लेकर जाते हैं ताकि लोग इनके कैसीनो में भी जुआ खेलें। हर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कैसीनो, इसके ऊपर मॉल और इसके ऊपर रहायशी होटल होता है। यहाँ जुआ खेलना कानूनी है, लेकिन 21 साल से कम उम्र अफराद दाखिल नहीं हो सकते। कैसीनो की लॉबी में आप वीडियो बना सकते हैं। जहाँ गैम्बलिंग होती है वहाँ जाने से पहले कैमरे पर ये लोग स्टिकर लगा देते हैं, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हर कैसीनो में एटीएम मौजूद है, लेकिन 1000 हांगकांग डॉलर से कम नोट नहीं निकलता। ड्रिंक से लेकर विस्की तक सब फ्री है। हकीकत में ये एक ट्रैप है। शुरू में थोड़ा सा जितवाते हैं ताकि आपका डोपामीन ज्यादा रहे और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते रहें। आगे चाइनीज बैठे हैं और फिर लालच की वजह से चंद मिनटों में जेबें खाली हो जाती हैं, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ और लोग जब बाहर निकलते हैं तो मुंह लटके होते हैं, क्योंकि अपना माल लुटवा चुके होते हैं। मकाओ का अपना एयरपोर्ट और बंदरगाह है और इसके पास 5 मर्चेंट मैरीन और 4 हेलीकॉप्टर हैं। आप हांगकांग या चाइना से मकाओ बस या फेरी के जरिए जा सकते हैं। फेरी के जरिए सफर करने पर दुबई मैरीना की तरह समंदर के किनारों पर हाई राइज बिल्डिंग का नजारा मिलता है और शाम 6 बजे के बाद 20% नाइट सेलिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं। एंट्री पॉइंट एयरपोर्ट की तरह बने हुए हैं। कस्टम क्लियरेंस के बाद आपको स्लिप दे दी जाती है। मकाओ टावर यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है, जहाँ 233 मीटर की बुलंदी से पंजी जंप की सहूलत मौजूद है, जहाँ से अपनी आंखों से शहर के खूबसूरत नजारे कर सकते हैं। मकाओ में 4 का हिस्सा अनलकी समझा जाता है, इसलिए यहाँ की इमारतों में चौथा फ्लोर नहीं होता। हांगकांग या चाइना की सिम यहाँ नहीं चलती, लेकिन फ्री वाईफाई आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ 20 लाख की घड़ी का भी रेट अगर पूछेंगे तो आपको हर करेंसी में रेट कन्वर्ट करके बताएंगे। आपको जज नहीं करेंगे कि आपने लेनी है कि नहीं। मकाओ में हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की मुतनव्वे सकाफत को जाहिर करते हैं। मकाओ ग्रैंड प्री रेस, मकाओ लाइट फेस्टिवल, चाइनीज न्यू ईयर, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और साथ ही पुर्तगाली त्यौहार फेस्टास दी साउ जोआ यहाँ बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। मकाओ के खानों में पुर्तगाली और चाइनीज डिशेस शामिल हैं और अगर आप मुस्लिम हैं या वेजिटेरियन हैं तो इस बात का ख्याल रहे, कुत्ता, बिल्ली, सूअर ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ की चिप्स भी सूअर की चर्बी में तली होती है और आपको शॉप्स के बाहर एक्वेरियम नजर आ जाए, समझ जाए यहाँ से मछली, लॉबस्टर, बिच्छू, सांप और मगरमच्छ तक खाने को मिल सकता है। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। जब भी जाएं अपने साथ अपने खाने की चीजें साथ लेकर जाएं। फेमस प्लेसेस इन मकाओ, यहाँ के मशहूर मकामात में कोटाई स्ट्रिप, ताइपा विलेज और सेंट पॉल का कैथेड्रल शामिल है। कोटाई स्ट्रिप मकाओ का एक मशहूर इलाका है जो कोलोवान और टाइपा जजायर के दरमियान भराई की गई जमीन पर बनाया गया है। कोटाई स्ट्रिप 5.2 किलोमीटर लंबी है। इसे लॉस वेगास स्ट्रिप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के बड़े और मशहूर कैसीनो और रिजॉर्ट मौजूद हैं, जैसे वेनेशियन मकाओ। इसकी थीम वीनस के स्टाइल में बनाई गई है, जहाँ पानी में गंडोले चलते हैं। पेरिजियन, ये पेरिस की तर्ज पर बनाया गया है, जहाँ एफिल टावर की रेप्लिका देखने को मिलती है। द लंडनर, जो लंदन की तर्ज तमीर की अक्कासी करता है। यह बिग मैन, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और लंदन आई की रेप्लिका बनी है। हमारी अगली मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ताइपा विलेज है, जो अपनी रवायती गलियों, पुरानी इमारतों और मकामी खानों के लिए मशहूर है। यहाँ की इमारतें पुर्तगाली तर्ज तामीर की याद दिलाती हैं, जबकि गांव की गलियों में चीनी सकाफती असरात वाज़े तौर पर नजर आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, कैफे और छोटी दुकानें हैं, जहाँ मकामी और सयाह मकाओ के रवायती पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ ताइपा हाउस म्यूजियम भी है। नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन सिनाडो स्क्वायर है। ये मकाओ की ब्लड लाइन है। सिनाडो स्क्वायर का फर्श पुर्तगाली तर्ज के मोज़ैक टाइलों से बना है। स्क्वायर के इर्द गिर्द मुतअद्दिद तारीखी इमारतें, चर्चेज और रवायती पुर्तगेजी तर्ज के मकानात मौजूद हैं। सिनाडो स्क्वायर को 2005 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल किया गया था। सेंट पॉल कैथेड्रल के खंडरात भी यही हैं। इसे 1835 में जला दिया गया था। अब यहाँ इसके आसार बाकी हैं और सबसे ज्यादा सयाह यहीं का विजिट करते हैं। मकाओ की इक्तिसादी हालत पर नजर डालें तो आज मकाओ $40 बिलियन सिर्फ गैम्बलिंग से कमाता है। $23 बिलियन की ज्वेलरी, घड़ियां और ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है।
मकाओ पॉपुलेशन दुनिया की सबसे गुंजान आबादी वाले इलाकों में से एक है, जहां 1 मुरब्बा किलोमीटर में 21,000 अफराद रहते हैं और इसकी टोटल पॉपुलेशन 6,44,626 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 88% चाइनीज हान नस्ल, 12% फिलिपीनी, वियतनामी और पुर्तगीजी नस्ल के लोगों की है। यहाँ मर्दों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। मकाओ में 59% आबादी फोक मजहब को फॉलो करती है। इसके बाद 17% बुद्धिस्ट, 7% क्रिश्चियन और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। मकाओ की लाइफस्टाइल के बारे में बता दूं, यहाँ लाइफ बहुत महंगी है क्योंकि यहाँ जगह कम है और आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ के होटल के कमरे बहुत छोटे और एक्सपेंसिव हैं। यहाँ एक कमरे का किराया महाना तकरीबन 2 लाख रुपए के लगभग है। मकाओ इतना छोटा है कि आप इसे पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मेट्रो, ट्रेन से लेकर टुक टुक रिक्शा तक हर चीज दस्तयाब है। अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको रिक्शा पर जाना चाहिए। बाकी जितनी भी घूमने की जगह हैं, इनकी तस्वीर अपने मोबाइल में पहले से रख लें क्योंकि इनको पुर्तगीजी और चाइनीज के अलावा कुछ नहीं आता। मकाओ में एहतियाती तदाबीर यहाँ जराइम के मुनज़्ज़म ग्रोह, मंशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पोर्नोग्राफी और इंसानी स्मगलिंग के कार्टेल मौजूद हैं। मकाओ में हर कसीनो की अपनी सीक्रेट सिक्योरिटी है और पुलिस सिर्फ बाहर तक ही रह सकती है। कई जगहों पर क्रेडिट कार्ड की बजाय कैश में लेन देन होता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें। अपने क्रेडिट कार्ड की मालूमात किसी गैर मोतबर वेबसाइट पर न दें और हमेशा महफूज नेटवर्क इस्तेमाल करें। मकाओ के लोग मेहनती हैं मगर बहुत ज्यादा मूडी हैं। इनके पास आपको एड्रेस बताने का टाइम नहीं क्योंकि इन्हें अंग्रेजी ही नहीं आती। मकाओ में पालतू जानवरों को अवामी मकामात पर ले जाते वक्त इनका पटा बांधना जरूरी है। मकाओ में लिटरेसी रेट 97% है। यहाँ औसत उम्र 85.3 साल है जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। इसका डायलिंग कोड +853 है। वैसे तो बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि लोग यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग के लिए हैं, लेकिन हकीकत में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यूरोप में मोनाको और एशिया में मकाओ ब्लैक मनी को वाइट करने के अड्डे हैं, जहां माफिया डॉन, करप्ट जर्नैल, सियासतदान चोरी का पैसा लेकर रेसिंग कारों, महंगी यार्ड और गोल्ड की शक्ल में पार करते हैं और फिर यहाँ से पैसा दूसरे अकाउंट में ये कहते हुए मुंतकिल करते हैं कि हमने चंद डॉलर का जुआ खेला था, इससे हमने कई मिलियन बना ली हैं। शायद यही वजह है कि मकाओ में अब बहुत ज्यादा इंडियन सिर्फ गैम्बलिंग की वजह से आने लगे हैं। वीजा के बारे में बता दूं, चीन, हांगकांग और ताइवान के शहरियों के अलावा तमाम लोगों को वीजा की जरूरत होती है। बाज़ ममालिक के शहरी मकाओ पहुंचने पर वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। इंडियन के लिए वीजा ऑन अराइवल मौजूद है, लेकिन PAR चाहिए होता है, यानी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, और एंट्री के वक्त पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगती, सिर्फ एंट्री की स्लिप मिलती है और सवाल पूछते हैं कि कितने हांगकांग डॉलर लेकर आए हैं। अमेरिकन डॉलर नहीं पूछते क्योंकि यहाँ सारा लेन देन हांगकांग डॉलर में होता है। मकाओ में एंट्री पर ज्यादा मसला नहीं करते, लेकिन जब आप यहाँ से निकलने लगते हैं तो हर किसी के साथ पंगा करते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद हांगकांग और मकाओ के लोग चाइनीज से ज्यादा खुश नहीं नजर आते क्योंकि वो जानते हैं चाइना में इंसानी हकूक महदूद हैं, इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मकाओ का सफर करने के लिए मुफीद मालूमात मिली होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।